Hello, second year students. Welcome back. We're doing paper 1, English literature, second year, paper 1, and we're doing this is unit in paper 1, this is unit 3, and we have already done West Wind by Shelley. We are going to do another poem by Shelley, Percy Bysshe Shelley, and that is To a Skylark. आप लोग इसको हिंदी में अगर देखेंगे तो इट्स कॉल्ड अ भरल पक्षी, जो कि बहुत सुंदर गाता है. तो ये एक चिड़िया है विच सिंग्स, इट्स अ बर्ड विच सिंग्स ब्यूटिफुली. एंड उसकी सिंगिंग की अब आप लोगों ने द सॉलिटरी रीपर किया है मेरे साथ, इन विच this beautiful village girl is singing a beautiful song, and it is carried by Wordsworth in his heart, and he hears it for a long time, after she has finished singing. Now that's another song, another singing thing, and that's a bird, and that is a skylark. So what does Shelley say about the skylark? Hail to thee, blithe spirit, bird thou never wert, that from heaven or near it pourest thy full heart in profuse strains of unpremeditated art. Now this is lovely. He says, welcome to thee, to you. Thee is the archaic form of you. पुराने ज़माने में यू को दी कहा जाता था, तुम्हारे को दाइन कहा जाता था, तुम्हें दाव कहा जाता था. So hail to thee, I welcome you, blithe spirit. Blithe spirit means you spirit, or you happy spirit, or you spirit which is full of life, which is happy and gay and so full of life. And you are like a spirit. You are not a body. You are like a spirit. You are something that is transcendental. You are something that is spiritual. You are something that is ethereal. Okay? Bird thou never wert. Wert is ver, W-E-R-E. Yeah? And thou means tum, you. Bird you never were. You were never a bird for me. You were always something like a spirit, something very, something that you can not see but feel, that you are spirit to me. That from heaven or near it. And I'm sure that you live somewhere near the heaven or in the heaven, and you pourest thy full heart in profuse strains of unpremeditated art. And you pour your heart. You pour your heart means you are, in profuse strains. Profuse strains means, profuse means big. Strains means streams, journey. Unpremeditated, spontaneous. You don't have to think about it. You don't plan it. It is so spontaneous. Art is your skill, your beautiful song that you pour from the heaven to the earth, and you fill the earth with your beautiful song. Okay? Higher still and higher from the earth thou springest. और किस तरह से जब तुम उड़ती जाती हो, higher, जैसे bird को देखा कवि ने, and it is going higher. वो उड़ती जा रही है ऊंची ऊंची, still higher from the earth. इस earth से thou springest. Springest means thou means you. Springest means जैसे spring के जैसे ऊपर उछल के जाती हो तुम. Springest means speedily you go up into the sky like a cloud of fire. And एक बादल जो बिजली से भरा होता है उसकी तरह तुम होती हो. यानी कि गीत से, संगीत से भरी हुई लबरेज कैसे उंडेलती हो तुम अपने गीतों को, अपने गाने को, अपनी वॉइस को, अपनी खूबसूरत म्यूजिक, अपनी मेलोडी को. द ब्लू डीप दाउ विंगेस्ट. एंड पूरे नीले आसमान में तुम विंगेस्ट मीन्स उड़ती रहती हो. यू फ्लाई एंड सिंगिंग स्टिल दो सोर, एंड सोरिंग एवर सिंगेस्ट. एंड वाइल यू सिंग you are, dos means does, so you are soaring. Soaring means you are flying in the sky, and while flying you are singing, so you're both singing and flying at the same time. In the golden lightning of the sunken sun, over which clouds are brightening, thou dost float and run like an unbodied joy whose race is just begun. This is beautiful, children. द गोल्डन, जैसे सूरज, संकन सन मतलब सूरज डूब रहा है बेटा, उसकी गोल्डन लाइट पूरी दुनिया में फैल गई है, और उसके चारों तरफ उसमें क्लाउड्स ही क्लाउड्स, ब्राइट क्लाउड्स, पीछे से सूरज की किरणें क्लाउड्स के पीछे से इतनी ब्राइट दिखाई दे रही हैं, और उसमें यू आर फ्लोटिंग एंड रनिंग, यू आर फ्लाइंग एंड यू आर इंजॉइंग योर राइड इन द स्काई लाइक एन अनबॉडीड जॉय. सी ब्यूटिफुल बेटा. अनबॉडीड क्यों कहा है कवि ने?
सब बॉडी नहीं होता। आप याद रखिए कि जब क्राइस्ट ने भी जन्म लिया था इस दुनिया में तो उन्होंने कहा था इंसान बन के रहना दुनिया में बहुत मुश्किल है, फ्लैश एंड ब्लड में रहना और ज़िंदगी बिताना बहुत मुश्किल होता है। तो ये उसको कह रहे हैं, ये जानते हैं बेटा, आपने पिछली वाली पोएम में पढ़ा है, आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ आई ब्लीड, कि किस तरह से मैं गिर पड़ा हूँ अपनी ज़िंदगी के थपेड़ों को सहते सहते और मैं लहूलुहान हो गया हूँ। तो वो ये सब कब होता है बेटा? जब आप इस बॉडी में होते हैं, ये फ्लैश एंड ब्लड का जो बॉडी है। लेकिन जब आप बॉडी लेस होते हैं तो आपने देखा है ना कि जैसे मौत के बारे में या अनंतता के बारे में या स्पिरिट के बारे में कहा जाता है कि हम लोग अनंत हैं। बॉडी ही हमें लिमिट करता है, बॉडी ही हमें रोकता है, सीमित करता है। तो ये अनबॉडीड, बिना बॉडी की जॉय है। जॉय मतलब अपार खुशी, हुज रेस इज जस्ट बिगन, जिसकी रेस अभी चालू ही हुई है। द पेल पर्पल इवन मेल्ट्स अराउंड दाई फ्लाइट, और जो द पेल पर्पल इवन, जो बिल्कुल धुंधली सी, पर्पल मतलब रेडिश, पिंकिश रेडिश, जो इवनिंग है, मेल्ट्स अराउंड दैट फ्लाइट, तुम ऊपर उड़ रही हो और गा रही हो और तुम्हारे चारों ओर धीरे धीरे जो शाम है वो ढलती जा रही है, लाइक अ स्टार ऑफ हेवन इन द ब्रॉड डे लाइट। और जैसे स्टार होता है ना हेवन का, हेवन में जैसे आसमान में जो तारे चमकते हैं, वो इन द ब्रॉड डे लाइट, जब तेज़ धूप होती है, जब दिन निकलता है तो वो आसमान के तारे दिखने बंद हो जाते हैं। सो दाओ, उसी तरह से तुम दाओ आर्ट अनसीन, तुम भी मुझे दिखाई नहीं दे रही हो उन तारों की तरह। देखो तारे हैं बेटा, जब दिन हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि तारे खो जाते हैं आसमान में से, वो होते, लेकिन चमक में आपको तारे दिखाई नहीं देते। और जब सूरज ढलता है तो आपको तारे दिखाई देते हैं। तो कह रहे हैं शैली, दाओ आर्ट अनसीन, यू आर, दाओ मीन्स यू, आर्ट मीन्स आर, अनसीन, मुझे दिखाई नहीं दे रही हो, बट येट आई हियर दाई श्रिल डिलाइट, बट हमेशा मैं सुन सकता हूँ तुम्हारी श्रिल, वो बहुत ही तीखी, बहुत ही सुरीली, डिलाइट मतलब बेटा खुशी से भरी तुम्हारी आवाज़ मैं सुन सकता हूँ। मैं तुम्हें देख तो नहीं पा रहा हूँ क्योंकि शाम हो गई है, तुम आसमान में कहाँ उड़ रही हो, मैं देख तो नहीं पा रहा हूँ, तुम तारों की तरह हो जो दिन में नहीं दिखते लेकिन फिर भी वो होते हैं वहाँ पर, और तुम हो यहाँ वहाँ पर, मुझे मालूम है क्योंकि मैं तुम्हारी आवाज़ सुन पा रहा हूँ। Keen are as the arrows of that silver sphere, this is beautiful, whose intense lamp narrows in the white dawn clear। और कह रहे हैं keen are as are the arrows, जितने तीखे चुभने वाले एरोज, तीर होते हैं ना, उस सिल्वर स्फीयर किसे कहते हैं? चांद को बेटा। उस चांद के जिसे किरणें इतनी तीखी, इतनी नुकीली, इतनी ज़्यादा खूबसूरत होती हैं, whose intense lamp narrows in the white dawn clear, और चांद की जो इंटेंस गहरी लाइट होती है ना, वो ख़त्म होती जाती है जैसे जैसे क्लियर दिन खुलता जाता है। until we hardly see we feel that it is there, और जब तक हम अच्छी तरह से देखते नहीं हैं हम उसको देख ही नहीं पाते। हम बिल्कुल उसे महसूस करते हैं कि चांद होगा, लेकिन जैसे ही दिन होता है हम उसे देख नहीं पाते, सिर्फ महसूस करते हैं। All the earth and air with thy voice is loud, as when night is bare from one lonely cloud। Now all the earth and air with thy noise is loud, पूरी दुनिया, पूरी ब्रह्मांड, पूरी प्रकृति, पूरी हवा, सब तुम्हारी आवाज़ से लाउड मीन्स बेटा गूंज रही है। एज वेन नाइट इज बेयर फ्रॉम वन लोनली क्लाउड, द मून रेन्स आउट हर बीम्स एंड हेवन इज ओवरफ्लोड। पूरी दुनिया, पूरी अर्थ, पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी आवाज़ से गूंज रहा है। और उसका कंपैरिजन क्या है बेटा, कि जब रात बिल्कुल बैर, बिल्कुल सिंपल बैर चांदनी रात है, उसमें क्या होता है, एक अकेला सा बादल आता है और उसके पीछे से मून रेन्स आउट हर बीम्स, जो चांद है वो अपनी बीम्स, अपनी रेज को बिखेर रहा है, एंड हेवन इज ओवरफ्लोड, और पूरा का पूरा आसमान उसकी चांदनी से भर जाता है। वैसे ही तुम्हारी आवाज़ से अर्थ, एयर, हेवन, पूरा ब्रह्मांड गूंज रहा है, भर गया है। नाउ दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल चिल्ड्रन। आप लोग
लिटरेचर स्टूडेंट्स हैं, लिटरेचर स्टूडेंट्स हमेशा एक्स्ट्रा सेंसिबिलिटी वाले बच्चे होते हैं। आप लिटरेचर केवल इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि अंग्रेज़ी ले लेंगे तो जल्दी से जॉब मिल जाएगा, वो ज़रूर एक रीज़न है, बट एक और रीज़न है कि उसमें हमें लोगों के दिल की, उनकी बातें, उनके सेंटिमेंट्स, उनके फीलिंग्स, उनके थॉट